है क्या? राज, शशांक, नैन्सी, वेंकट? नो सर। नो, ठीक है, चलिए। नाउ FRD. बिफोर आई स्टार्ट द FRD, आई जस्ट वांट टू हैव understanding from you, Nancy. What are the content of BRD? No, you just explain me what is BRD and then you tell me the content of BRD, Nancy. Nancy, okay. Nancy, Venkat, can you please tell me what is BRD and what are the content of BRD? सर हम ना मेट्रो के अंदर है सर। Okay, okay, no problem. ठीक है। शशांक, यस सर। can you please tell me what is BRD and what are the content of BRD? ओके सर। BND is a business requirement document, and it's a formal document that explains what's the business needs from a project or system. It captures the high level business requirements, goals, and scope, and stakeholders, and etc. Uh, and the content of VRDR: executive summary introduction, the brief history about the project, brief overview of the project, um, uh, purpose of the business requirement document, and the objective of the project scope, the details of the stakeholders, and functional requirements and the non-functional requirements, the what current and future state of the project, the flow process diagram, and that's it, sir. Mhm. Okay, I was speaking on mute. So it's very good effort, Shashank. Your answer is right, but when you give the interview, it will have the uh, more clear answer. Okay, but what I want to say, the answer is absolutely right. The content of BRD is absolutely right. Okay. Now let me again tell you guys the content of BRD. So the content of BRD will start from the project name. Then we are having the document revision, approvals. Then we are having the project summary. Then we are having in scope functionality, out of scope functionality, business process overview, current business process, proposed business process, functional requirement, non-functional requirement, appendices, grocery, and all. Okay. In this way, you need to answer. So now I'm showing you the FRD. Okay. चलिए. First, I will give the definition of FRD. Okay. Then I will explain the content of FRD. And then I'll tell you how you need to answer your answer in the interview. Okay. Now, just hear properly, guys. First, I'll start with the BRD and then I will take my answer to the FRD. BRD. BRD is the formal documentation which is prepared by the client. If we want to do the documentation in waterfall, we are writing BRD and FRD. In BRD, we are having all the business requirements. In BRD, we are writing what all client is looking for. So all the requirement that client is looking for will be part of BRD. No FRD. FRD is the functional requirement document. I'm not sharing my screen, guys. Huh? FRD is the functional requirement document. It will prepare by development team, business analyst. Business analyst will prepare this FRD with help of developer. In BRD, the content of BRD and FRD will be the same, mostly the same. In FRD, it is the detailed version of BRD. In BRD, we are documenting what customer want. In FRD, we are document how we can provide solution of the requirement given by the client in the BRD. In BRD, we are having some technical detail which is required for the developer to do the development as well.
So what is FRD? FRD is the functional requirement document. It is the detailed version of BRD. The content of BRD and FRD is mostly same, but in FRD, we're also mentioning the implementation approach, solution approach, some data flow diagrams and all, and some technical documentation. For creating the FRD, we are also taking, as a business analyst, we are also taking help from the developer. Definition, guys, understood? Nancy Savang, Subhas Venkat. Yes, sir. Okay. Now I will show you the FRD. आप इतना याद रखो, BRD और FRD के कंटेंट लगभग सेम रहते हैं. 2 से 3 कंटेंट एक्स्ट्रा हैं जो कि FRD में आता है. Otherwise, everything is going to be the same. What content can become? Most importantly, content will be implementation approach or the solution scope. Why? Because in BRD आपको क्लाइंट बोलता है क्या क्या चाहिए है. How you are going to implement that you are going to mention in the FRD. चलिए, this is your FRD, guys. This is the one template of FRD. I'll show you कि कौन कौन से कंटेंट सेम रहते हैं और कौन से कंटेंट एक्स्ट्रा रहते हैं in your FRD. So project name same as BRD, guys. Document revision same as BRD. Revision history same as BRD. Approval same as BRD. Now for the BRD also there can be different template. Okay, but the template that we have learned for 1 minute account opening और जो टेम्पलेट मैंने आपको बताया है, that is the ideal template. Okay, उसके कंटेंट आर वेरी आइडियल, तो आप उन कंटेंट को लेकर के चल सकते हैं. नाउ दिस इज योर इंडेक्स सेम एज BRD. जो आपका BRD जैसा FRD में होगा, मैं उसको बोलूंगा सेम एज BRD. Introduction, document convention same as BRD. Project background same as BRD. Solution scope, okay, this will come as a out of in scope functionality and then out of scope functionality. So included in the scope and excluded in the scope, same as BRD. Now solution perspective, okay, this can be additional point in the FRD. Means how you are going to provide the solution. So solution overview. This solution overview can also be written as an implementation approach. Solution approach, implementation approach, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है आपके पास. Okay. Then you are having solution के feature that will be extra in FRD. So solution approach, implementation approach, solution perspective, this will be extra in your FRD. Then you are having some diagrams that will be extra in your FRD. Solution user not require. Operational environment not require. User manual, yes. So whenever we are making any kind of project, any kind of application, तो जब उसको बना लेते हैं या बनाने का अप्रोच करते हैं, we are also providing some manual, यूजर मैनुअल, कि अगर यूजर को टेस्टिंग करनी होगी तो वो ये स्टेप फॉलो करेगा. यूजर आर गोइंग टू फॉलो दिस सेट ऑफ स्टेप. तो ये स्टेप्स आप एक यूजर मैनुअल बना करके अपने FRD में डालते हो. सो दिस इज योर सेकेंड एक्स्ट्रा कंटेंट इन FRD. फर्स्ट एक्स्ट्रा कंटेंट was solution approach, implementation approach. Second is your user documentation. उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेम एज BRD. सेम एज BRD. Context diagram not required. Now, data flow diagram. In some of the cases, you will have data flow diagram available in the BRD as well, in FRD as well. If you want to represent some solution and उस solution को दिखाने के लिए अगर आपको डेटा फ्लो डायग्राम बनाना पड़ता है, that will be your data flow diagram for FRD. डेटा फ्लो डायग्राम BRD में जो रहेगा, the diagram which will available in the BRD for data flow, that will showcase the requirement, how the solution will look like, or what is the requirement. The data flow which is available in the FRD will be the solutioning approach. So data flow diagram can be available in the BRD, FRD same, but it will be different in different diagram. In BRD, it will represent the requirement. In FRD, it will represent the solution scope. How your solution is going to happen. Logical data model not required. Data dictionary not required. Non-functional requirements same as
PRD. Specific interface requirement not require. Sometime what is happening guys, कि अगर मुझे कोई ऐसे फीचर्स हैं, ओके, that I need to showcase with help of diagram. ओके, सो हम लोग कौन से डायग्राम यूज कर सकते हैं वेंकट? इफ आई वांट टू शोकेस सम एप्लीकेशन, तो मैं कौन सा डायग्राम यूज कर सकता हूँ एप्लीकेशन को दिखाने के लिए? Sir, MS Video user. Yes, we can use MS Visio, correct, for data flow diagram. If I want to showcase some application, I can use the Balsamic. तो अगर आपको कहीं जरूरत है, यू वांट टू शोकेस सम डायग्राम, तो वहां पे आप स्पेसिफिक इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स को डाल सकते हो, या वायर फ्रेम का एक अलग से यू कैन क्रिएट द सेक्शन एंड यू कैन क्रिएट योर डायग्राम्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन हाउ इट विल लुक लाइक. शशांक, नैन्सी, वेंकट, सुभाष, यहाँ तक ठीक है? अंडरस्टूड एज ऑफ नाउ? Yes, sir. शशांक, Yes, sir. सुभाष? Yes, sir. अच्छा, सुभाष ऑफिस में, सॉरी सुभाष, नैन्सी का यस मिला मुझे. ठीक है. रिपोर्ट स्क्रीन, अगर कोई आपका रिपोर्ट स्क्रीन है जहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखाना है, तो आप दिखा सकते हो, बट दिस ऑप्शनल वन. हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, कम्युनिकेशन इंटरफेस, डेटा कन्वर्जन रिक्वायरमेंट. इफ दिस इज रिक्वायर, कई बार रिक्वायर होता है, कई बार रिक्वायर नहीं होता है. इफ इट इज रिक्वायर कि आपको आपके एफआरडी में डालना है, दीज डिटेल विल बी प्रोवाइडेड बाय डेवलपर टू यू. हार्डवेयर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, कम्युनिकेशन इंटरफेस. व्हाट इज हार्डवेयर इंटरफेस? अगर आपको कोई भी एक एप्लीकेशन बनाना है, उसमें जो जो हार्डवेयर यूज होने वाले हैं, मतलब आपका रैम यूज होने वाला है, कि कितना स्पेस आपको, कुछ सर्वर वगैरह चाहिए, तो हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे डालोगे. बट दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय योर डेवलपर. सॉफ्टवेयर इंटरफेस, अगर आपको कोई सर्वर का डिटेल डालना है या किस सॉफ्टवेयर पे आपकी डिपेंडेंसी है, तो दैट यू विल पुट एज अ पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंटरफेस. देन यू आर हैविंग योर कम्युनिकेशन इंटरफेस. अगर आपको कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस डालना है, एपीआई वगैरह कुछ डिटेल डालनी है, दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इन द कम्युनिकेशन इंटरफेस. देन डेटा कन्वर्जन रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई डेटा कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको कोई भी डेटा रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, या डेटा से रिलेटेड कुछ भी आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डालने हैं, तो वो आपका डेटा एनालिस्ट आपको देगा. यू आर हैविंग द सेक्शन. इन चारों जगहों पे आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द डेवलपर्स एंड देन यू विल पुट द डेटा इफ इट इज रिक्वायर्ड. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा एज ऑफ नाउ कि बीआरडी में आपका केवल रिक्वायरमेंट रहता है, बट इन एफआरडी यू आर हैविंग द सॉल्यूशनिंग अप्रोच, यू आर हैविंग सम एक्स्ट्रा डायग्राम्स, यू आर हैविंग सम वायर फ्रेम्स, यू आर आल्सो हैविंग सम technical detail like software interface, hardware interface. Okay, so this is the extra that you are having in your FRD. सिक्योरिटी एडिट अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, वहां पे यू विल सिंपली हैव द रिक्वायरमेंट. तो सेम बीआरडी एफआरडी ऐसा सेम होता है वहां पे, नो चेंज. सिस्टम अवेलेबिलिटी नो चेंज, सेम एज बीआरडी. कि सिस्टम कितना अवेलेबल रहना चाहिए, दिस विल कमिंग एज अ पार्ट ऑफ ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ओके. 10, कैपेसिटी, डेटा रिटेंशन. हाँ, अगर आपको बताना है कि दिस विल कम एज अ पार्ट ऑफ बीआरडी ऑल्सो. ओके, कि आपका डेटा जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, या एप्लीकेशन कैपेसिटी कितनी है. डेटा रिटेंशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ. अगर आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो जहाँ पे यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ रिपोर्ट, जैसे यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, सो वी आर वर्किंग सम ऑफ द रिपोर्ट्स, वी आर जनरेटिंग द रिपोर्ट. तो अगर वो रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो वो रिपोर्ट कब तक रहना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, या जो डेटा का रिटेंशन पॉलिसी है कि माई डेटा विल बी रिटेन फॉर द 5 ईयर, माई डेटा विल बी रिटेन फॉर द 10 ईयर. अब वो डेटा रिटेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस हिसाब से मेरा स्टोरेज की कैपेसिटी डिफाइंड होती है. अगर मुझे 1 साल का डेटा चाहिए, माई स्टोरेज कैपेसिटी विल बी डिफरेंट. मुझे अगर 5 साल का डेटा चाहिए, माई स्टोरेज कैपेसिटी विल बी डिफरेंट. अगर मुझे 10 साल का डेटा स्टोर करना है, तो उसके मुझे बहुत बड़ा सेटअप लगेगा. तो डेटा रिटेंशन ऑल्सो वी आर मेंटेनिंग एज अ पार्ट ऑफ बीआरडी में भी करते हैं और एफआरडी में भी कर सकते हैं. The validation rules and all error handling, this is part of the same BRD. कोई चेंज नहीं है वहाँ पे. देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स टेस्टिंग के जो आपके टेस्ट केसेस रहते हैं, तो यहाँ पे भी आप डालते हो, वहाँ पे भी डालते हो. अजम्पशन सेम है आपका, बीआरडी जैसा ही. कंस्ट्रेंट सेम, अपेंडिसेस सेम,
सोल्यूशन आर्किटेक्ट डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे ये हुई एक्स्ट्रा हो सकता है आपके एफआरडी में। आपके पास रिक्वायरमेंट आई, ओके, यू क्रिएटेड एवरीथिंग। नाउ आपको सोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए आपके डिजाइनर ने कोई डॉक्यूमेंट बना करके दिया है। बिकॉज दिस सोल्यूशन आर्किटेक्चर डायग्राम और द डिजाइन डायग्राम यू विल नॉट एबल टू क्रिएट। अगर फंक्शनल है तो एज अ बीए हम कर सकते हैं, बट इफ इट इज टेक्निकल देन वी विल नॉट एबल टू डू। Okay, the solution architecture can be part of your FRD. Okay, so let me again explain you the definition of FRD, what all extra content can be part of the FRD. Please give 100% focus again, guys. Shashank, Nancy, Subhash, Venkat, are you with me? Yes, sir. Check. Yes, sir. Okay. चलिए, what is FRD? FRD is the functional requirement document. It is detailed version of BRD. In FRD, we are having content which is same as per BRD, but in FRD, as it is a detailed version of document, we are having some extra content. This content will define the solutioning approach. Content can be implementation approach, solution approach, data flow diagrams, wireframe diagram, user manual, solution architecture. These can be your extra content in the BRD or FRD. So making the FRD, definitely I'll need help from the developer if I want to provide some extra sorry, technical detail like hardware interface, software interface, communication interface, and all. So FRD is the detailed version of BRD, and this FRD will be the base for the developer to do the development. Understood, Sasank? FRD? Yes, sir. ये आपको आंसर करना है इन द इंटरव्यू. Okay. Okay, in the mock also you need to answer the same way. Okay. Nancy understood? Yes. Venkat understood? सर क्या पूछा था सर, फोन आ गया था. No, have you understood the FRD? Explain किया हाँ, मैंने? यस यस सर. Okay. Subhas? Yes? No? In the chat you can reply. Okay, Subhas is in his office. I can understand. It's fine. चलिए. Now explaining you the another important topic, that is RTM. RTM बचा हुआ है, वो RTM बताता हूँ मैं आपको. मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, हम लोग क्लास आज खत्म जरूर करेंगे, बट एट एनी टाइम अगर आपको लगता है नहीं आज तो क्लास सेशन सब नहीं हो पाई खत्म, एपीआई नहीं हुआ है ना शशांक, नैन्सी? No, sir. हाँ, विल हैव द No, क्लास sir. ऑन, हाँ मंडे क्लास होगी हमारे यहाँ. विल हैव क्लास ऑन मंडे ऑल्सो. एपीआई पढ़ना जरूरी है आप लोग को, एपीआई से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि. ओके, कोई जल्दीबाजी नहीं है गाइस कोर्स खत्म करने की. हाँ, मॉक डेट डिसाइडेड है. मॉक डेट इज नॉट गोइंग टू चेंज क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स बस है, इसमें आपका मॉक डेट विल नॉट इम्पैक्ट. चलिए, लेट मी एक्सप्लेन यू द आरटीएम नाउ. लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन. इसके पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, राइट? एफआरडी देख रहे थे ना आप लोग? यस सर. हाँ हाँ, Yes, sir. ठीक है. आपको एफआरडी का दिखाया ना मैंने स्क्रीन, ये आप लोग देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देख रहे हैं सर, दिखा हाँ, रहा. ठीक है. चलिए, नाउ आरटीएम. ओके, आरटीएम मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए यूज होता है. ओके, and sometime, as you know, the role of business analyst is to gathering the requirement, to communicating with the client, to doing the management. So 20% job role of BA is a project management as well. 20 से कब 30 हो जाता है, कब 50 हो जाता है, then finally become the project manager.
That's why the BA is the more preferable candidate to become the project manager. Why? Because उनके जॉब रोल में 20 से 30% इनिशियल लेवल पे, इफ यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट, नॉट अ जूनियर बिजनेस एनालिस्ट, इफ यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट इन योर जॉब रोल, 20 to 30% area responsibilities will be for project manager as well. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है, एंड देन यू आर इजिली बिकमिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर इफ यू आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड नहीं, बन नहीं पड़ेगा, ओके, बिकॉज वी आर फंक्शनल पर्सन। प्रोजेक्ट मैनेजर इज वेरी गुड जॉब रोल गाइस, ठीक है, बट पहले बीए बनेंगे हम लोग। नाउ व्हाट इज आरटीएम? RTM is a requirement traceability matrix. Okay, what is RTM? RTM is a requirements traceability matrix. This requirement traceability matrix will help to in a simple language, to manage the project and to understand the status of the project. To understand the status of the project, we should able to understand the status of the requirement on which we are working. Okay. क्या होता है आरटीएम? आरटीएम एक ऐसा टूल है, इसको आप यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट के स्टेटस को पता करने के लिए, कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस रिक्वायरमेंट पे कौन काम कर रहा है, टेस्ट केसेस है कि नहीं है। इन सब के लिए आपका यूज होता है आरटीएम। द टेम्पलेट ऑफ आरटीएम कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल, ओके, और कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट एज वेल। हर जगह के लिए अलग अलग होता है आरटीएम। सो वी आर लर्निंग वन ऑफ द टेम्पलेट ऑफ आरटीएम। अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू, हैव यू क्रिएटेड द आरटीएम? मतलब यस सर, my project manager was maintaining, but sometime when he was unavailable, I need to maintain the RTM in my project. Again, I'm repeating. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, the question is asked in the interview, have you used RTM? Your answer will be yes sir, I have used the RTM in my project. Project manager was mostly using this, but when he was not available and sometime he was assigning me to do this job, so I was maintaining the RTM as well in my project. क्या होता है आरटीएम? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, ओके, ये 1 मिनट हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द कंटेंट, वन ऑफ द टेम्पलेट ऑफ आरटीएम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला प्रोजेक्ट का नाम, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर इफ यू वांट टू राइट इट डाउन योर प्रोजेक्ट नेम, यू कैन सिंपली राइट इट डाउन। हमने कौन सा एप्लीकेशन देखा था प्रोजेक्ट में, जो एग्जांपल पढ़ रहे थे हम लोग, याद है आप लोगों को? One axis. One X. Bank. So we'll simply write it down, one access. This is your project name and project manager Venkat. Then contact number, contact number. Okay. ठीक, इसका डेटा टाइप डेट है इसका। Why data type is date? It's too general only. Now we can write it down. So this is your contact number. Then the date on which we are creating this टेम्पलेट। तो ये रोज अपडेट होता है, दिस इज अपडेटिंग डेली। तो एग्जांपल, आज हम लोग बैठे हैं 12 दिसंबर 2025, ठीक है।
दिस इज December 12, 2025। अब यहाँ पे इन द फर्स्ट कॉलम यू आर हैविंग द आईडी। ओके, आपके पास आईडी यहाँ पे है। आईडी में क्या होता है? तो सिंपली हैविंग द नंबर। देन इन द सेकेंड यू आर हैविंग द रिक्वायरमेंट का नाम, कि आप किसके स्टूडेंट पे काम कर रहे हो। बैलेंस इंक्वायरी है। ओके, देन यू कैन हैव योर फंड ट्रांसफर, login page, balance inquiry. Okay, when you are having UPI, UPI के बाद you can have FD. So whatever requirement you are working on, fixed deposit जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आ जाता है स्पेसिफिकेशंस में। अगर आपको इसके रिलेटेड को टेक्निकल डिटेल देनी है, if you want to provide the status, short status of this, तो जैसे बैलेंस इंक्वायरी स्पेसिफिकेशन you will write requirement under process। फर्स्ट ये भी रिक्वायरमेंट अंडर प्रोसेस। लॉगिन पेज, they have done specification। if you want to put some specific वो आता है आपका sort status। then what is the goal of this balance inquiry? goal of the balance inquiry is to, नैन्सी क्या होगा goal of this balance inquiry? सर बैलेंस इंक्वायरी का गोल यही होगा ना कि कस्टमर अपना फंड्स कितना है अकाउंट में वो चेक कर पाए। correct, goal will be, business goal will be, customer will be able to see funds in his और हर अकाउंट। गोल हो गया आपका। ठीक है, अब इसको रिक्वेस्ट किसने किया है? एग्जाम्पल नैन्सी ने इसको रिक्वेस्ट किया है। नैन्सी कौन है? नैन्सी कौन है? नैन्सी बिजनेस यूजर है। डिपार्टमेंट में आता है रिक्वेस्टेड बाय, सबसे पहले आपका गोल के बाद आता है रिक्वेस्टेड बाय। किसने रिक्वेस्ट किया है? रिक्वेस्टेड बाय नैन्सी। नैन्सी इज योर क्लाइंट, जिनसे आपको रिक्वायरमेंट आई है। अब नैन्सी का डिपार्टमेंट क्या है? बिजनेस यूजर है, ऑडिटर है, क्या है? तो सी इज अ बिजनेस यूजर। देन यू आर हैविंग द डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स में क्या आते हैं आपके, कि सम टाइम एग्जाम्पल वी आर हैविंग 20 रिक्वायरमेंट, हमारे पास 20 रिक्वायरमेंट है टोटल। मेरे पास रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है? 20 है। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं फेज 1, मैं इसको दो फेज डिवाइड करूंगा, फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में 10 को लेके जाऊंगा, 10 रिक्वायरमेंट। फेज 2 में 10 को लेके जाऊंगा। उसका जो नाम रहेगा, फेज 1 का नाम मैं दूंगा 1.0 और इसका नाम दूंगा 2.0 या 1 और 2। अब फेज 1 में जो 10 रिक्वायरमेंट होंगे वो स्टार्ट होंगे 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। और जितने रिक्वायरमेंट फेज 1 से रिलेटेड होंगे उसको हम देंगे डिलीवरेबल 1, ऐसे आएंगे। जो फेस नंबर 2 में रिक्वायरमेंट जाएंगे, 10 रिक्वायरमेंट मान के चलो, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, ये सब मैंने फेस 1 डिलीवर करने वाले हैं। तो डिलीवर कब 1, आई विल ऑल्सो डिलीवर सम रिक्वायरमेंट इन फेज 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आ जाता है आपका डिलीवर। ये आपका बोलोगे बैलेंस इंक्वायरी, इसमें तो 1.1 में है, ये 2.1 में है, ये अगेन 1.1 में है, ये 1.2 है इसका रिक्वायरमेंट का नाम। लॉगिन पेज 1.2 हो गया। यूपीआई इज 2.2, 1.3, 2.3। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट के नंबर है, आपका एफडी तक है, इसको डिलीट करता हूँ। तो ये आप नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर डिलीवरेबल्स, कि किस डिलीवरेबल्स में जा रहा है ये।
ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। 1.1, 1.2, 1.3 ये फेस वन में जाएंगे। मतलब आपका बैलेंस इंक्वायरी, लॉगिन पेज और एफडी, ये आपके जाने वाले हैं फर्स्ट फेस में। आपका फंड ट्रांसफर और यूपीआई, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर डिलिवरेबल्स टू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस विल बी पार्ट ऑफ योर आरटीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके बैलेंस इंक्वायरी के टेस्ट केसेस जो आपको लगते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैन यू प्लीज टेल मी शशांक, 2 टेस्ट केस ऑफ बैलेंस इंक्वायरी? शशांक, Yes, sir. टेस्ट केसेस ऑफ बैलेंस इंक्वायरी Test cases. हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा टेस्ट केसेस? Yes, sir. वेंकट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? सर हाँ, क्या पूछ रहे थे सर? अब हमने टेस्ट केसेस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ पढ़ा है ना सर। ओके। नैन्सी जी, आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। यस सर, पढ़ा है पढ़ा है। You mean the login page like that? तो बैलेंस इंक्वायरी के टेस्ट केसेस क्या होंगे वो बताइए आप मुझे। This one, the test cases one, the acceptance criteria, that one, no, sir. The first one is login credentials, and the acceptance criteria for that is whenever the customer. No, I'm asking for balance inquiry, what will be the test case? You are telling about the login page. I'm asking for the balance inquiry. For the balance inquiry, what can be the test cases? For balance, check balance inquiry. याद आया शशांक? Yes, sir. ठीक है। एक और बताता हूँ आपको मैं। सेकंड विल बी, सेकंड एमसी जी बताइए। So, in balance inquiry, when customer wants to download the statement, there should be the download statement option available. क्या बोल रहे हो आपने? डाउनलोड स्टेटमेंट? फिर से बोलिए। Yes तो sir, मैं बैलेंस इंक्वायरी का पूछ रहा हूँ। बैलेंस इंक्वायरी में तो और क्या होगा? Recent transactions, the customer should be able to see the recent transactions. आवाज कम करना। नैन्सी, Hello. Yes customer sir. will be able to see the recent transaction, customer will be able to download his statement। ये बैलेंस इंक्वायरी के टेस्ट केसेस हैं। Sir, no sir, but balance inquiry में there would be only one test case that that customer will should that click that on the. that can be fine ना, एक ही होगा। Yes sir. तो आप दूसरा तीसरा क्यों बोल रहे हो आप? नैन्सी जी, we can also Yes have sir. कि balance should be available in INR, करेक्ट? Yes sir. मतलब वो हो सकते हैं, मतलब मेरे दिमाग में आए क्योंकि मुझे पता है, आपके दिमाग में नहीं है क्योंकि आपने ज्यादा सोचा नहीं, दैट इज फाइन। बट आप उसको दूसरे से रिलेट मत करो प्लीज।
Okay, sir. है ना नैन्सी जी? क्योंकि अगर मतलब बहुत ही गलत हो गया तो मैं ऐसे बात करिए मुझे नहीं नहीं नहीं, नैन्सी जी आप मुझे बताओ, आप स्टेटमेंट का क्या होगा? टेस्ट केस Yes, sir. समझ गई. समझ गए? वेंकट समझा आपने? शशांक, हैव यू अंडरस्टूड मैं क्या नैन्सी जी को बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. टेस्ट केसेस That विल you बी, told only the test हाँ, cases for only balance inquiry, right? yes, so test cases will belong to the specific requirement. Okay, Nancy ji, okay. understood? Got it, sir. Yes, sir. Yes, test cases will be related to the specific requirement. Okay, now fund transfer के लिए बताइए नैन्सी जी, एक फंड ट्रांसफर. Customer should be able to transfer the funds via pay option. Pay option should be there. should be able, पे ऑप्शन should be there, वो सब छोड़िए. Yes. फंड ट्रांसफर ऑप्शन should be there, ये भी तो अच्छा Yes, टेस्ट sir. केस है. होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, राइट? वेरी गुड नैन्सी. फंड ट्रांसफर ऑप्शन शुड बी देयर. फिर जब क्लिक करें तो वहां से जिस पेज पे लेके जाओ, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? तो वी कैन मल्टीपल टेस्ट केसेस फॉर फंड ट्रांसफर एज वेल. So test cases acceptance criteria is also important in your requirement traceability matrix. Then next is your status. In the status you can have multiple kind of status guys. Not started, started, done, blocked, जो भी इसका स्टेटस है. अगर आपने काम इस पे करना स्टार्ट कर दिया है तो आप स्टार्टेड लिखोगे. अगर मान के चलो आपने इस पे काम करना स्टार्ट नहीं किया है तो नॉट स्टार्टेड हो जाएगा. इस वाले पे अगर आपने कर ब्लॉक्ड हो गया है, ये इस वाले को आपने ऑलरेडी खत्म कर चुका है. सो वॉट एवर इज द स्टेटस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, बैलेंस इंक्वायरी नॉट स्टार्टेड हुआ है, फंड ट्रांसफर ब्लॉक्ड है ड्यू टू एनी रीजन, लॉग इन पेज इज योर कंप्लीट. देन लास्ट कमिंग इज योर कमेंट. तो कमेंट में क्या आता है? इफ यू वांट टू प्रोवाइड एनी कमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोवाइड. जैसे मैंने क्या बोला, नॉट स्टार्टेड है ना, तो आप सिंपल लिख सकते हो रिक्वायरमेंट गैदरिंग नॉट कंप्लीटेड. ठीक है, ये दे सकते हो आप. ये ब्लॉक्ड है तो आप कमेंट दे सकते हो यूजर पेंडिंग फॉर यूजर रिस्पॉन्स. आपने कुछ पूछा है यूजर से और उसका रिस्पॉन्स नहीं, इसलिए ब्लॉक हो चुका है. लॉग इन पेज, डेवलपमेंट एंड, या सिंपली आप बोल दो वेंट लाइव. लाइन चला गया ऑलरेडी. सो दिस इज योर आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. दिस टेम्पलेट जो मैंने आपको दिखाया, एक टेम्पलेट ऐसा होता है, इसका टेम्पलेट डिफरेंट भी हो सकता है. आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ से मैंने बनाया था आरटीएम, और बस उसका टेम्पलेट जो था वो ये था जो मेरे पास था. आप बोलोगे मैं आपको बना के दिखा भी सकती हूँ आपको. वो आपसे पूछेगा कॉलम कौन कौन से थे, विच ऑल कॉलम वॉज प्रेजेंट इन योर आरटीएम. तो आप बोलना था रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बिजनेस नीड रिक्वेस्टेड बाय टेस्ट केसेस स्टेटस एंड कमेंट. टेस्ट केसेस बिल्कुल भूलना मत भूलना, आई एम जस्ट रिपीटिंग गाइड. जब मैं आरटीएम आपसे पूछूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से कॉलम है उसमें, तो आप टेस्ट केस का कॉलम बोलना मत भूलना. टेस्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम इन योर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. शशांक, हैव यू अंडरस्टूड आरटीएम? Yes, sir. नैन्सी जी, Yes, sir. वेंकट, सर. अंडरस्टूड? हम्म. ओके. सुभाष, ओके. सुभाष इज ऑफिस. ठीक है गाइस, आई डोंट वांट टू स्टार्ट द टॉपिक टुडे ऑफ एपीआई. एपीआई वी विल हैव ऑन मंडे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है. वन क्लास इज सफिशिएंट फॉर एपीआई फॉर यू टू अंडरस्टैंड एपीआई एंड ऑल. हम लोग पोस्टमैन टूल भी पढ़ेंगे एपीआई के साथ साथ. ओके. नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग related to the project, related to the syllabus, related to the job, anything you can ask. सर हम लोग डब्ल्यू कवर नहीं करेंगे सर. No, no, Tableau is not required. Power BI पढ़ा हमने. हम्म. We will use, हमने Power BI यूज किया है. Tableau we have not used.
सेम ही होता है वेंकट, वो भी चार्ट बनाने के हाँ लिए यूज वही होता है। है, सब चीज से तो वही है ना सर, डेटा विजुअलाइजेशन Data विजुअलाइजेशन। visualization, yes. So for data visualization, Tableau, Power BI, we have done the Power BI. Acha, no, हम्म। I think I committed something. Okay. Sashank, Yes, dear, share sir. your screen. You want to show Power BI, right? Yes, sir. 1 second, I will share. Okay. So guys, अच्छा नैन्सी ट्राई किया क्या पावर बीआई यस मोबाइल सर, पे? किया था मैंने, डाउनलोड भी किया था, बट इट इजंट वर्किंग इन माय फोन. इट इज आस्किंग फॉर द वर्क आईडी, लाइक ईमेल आईडी वो वर्क वाला ही ले रहा है, और मैं इंडसन वाला नहीं देना चाहती उसमें. नहीं, इंडसन मेरा सही भी नहीं है. This is the dashboard you have created. Sir, is it visible? This is visible. It is looking like a wow. कैसा लग रहा है नैन्सी? बहुत अच्छा है सर. बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड यार. सुभाष तो बोलेगा नहीं यार. वेंकट, हाउ इट इज लुकिंग? यस सर। एक्सीलेंट, राइट? बहुत प्यारा दिख रहा है. वेरी हमें गुड. तो बहुत, This is only हमें तो ये the कोनिकल ग्राफ का एक हुआ है, उल्टा पुल्टा एक बना है सर। नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा बनाओ, पर बनाना है, आप लोग को बनाना है. ओके. नैन्सी का ठीक है, इट्स फाइन. बट वेंकट, यू नीड टू क्रिएट एंड सुभाष यू नीड टू क्रिएट. नहीं हम बनाए हैं सर, वो हमें तो इस बहुत कुछ बनाया है सर। अच्छा. कल हम शेयर करूंगा सर। ओके. नो, मंडे यू कैन शेयर. sir, नहीं ग्रुप में actually, this is only for a sales analysis. That's it. Okay, can you We would you like can to add explain? more. Would you like to Yes, explain us? yes, sir. Okay. Actually, this dashboard represents the sales analysis of the superstore market. The first board represents the total sum of sales over the year. In the And United States? yes, in the United States. Okay. And second, the quantity of the overall quantity of the products which are sold in the US Okay. states, and it's the some total number of profit gained in the states, US states. So it's the number of orders over the year. Very good, yeah. And second, the it represents the sales uh, by region. Okay. I mean East US, West US. Sir, are you visible that it changes when I Yeah, select it the is East? changing. Yes, correct. All East are coming. Yeah. Okay. It's the list of which sales, and you can identify in which region the products have been sold in the higher margin. Okay. And this represents the product category. In which category does it um, like there are three categories in technology: furnitures and office supplies. The maximum number of products which are sold in technology. So very nice. So you have published कि किस वाले प्रोडक्ट कैटेगरी में ज्यादा सेल हुआ है. वेरी नाइस है. Again, this is regarding the sales with respect to the months. Okay. In which month does the sales gone in a higher margin? Very But nice. actually, it is in June. Okay, so in June it was highest, and Yeah, in March it was lowest. yeah. Very good, yeah, very good. Okay. And again, the sales with respect to the state or provinces Okay. within the United States. Okay. This represents the California, which is the highest sum of sales. Okay. California is the highest sales. Okay. Yeah. And again, the subcategory belongs to the product category. Mm-hmm. I mean, office machines, machineries, chairs, telephones, groceries, and Okay, all. in subcategory which is having the highest sale. Yeah, in the office Okay. machines. And this sells by shipping mode, क्या बात है. Okay. by So, regular air delivery, by truck, express airway. It's like that. Maximum the shipment is done by
C, regular A. Delivery truck. Yeah, no, by freight. By Freight. regular Regular A. air. No, No. regular air में कितना है? It's 990 ना. In delivery truck में, okay, correct, 990 highest. Correct. Okay, you have selected one only ना. वो मुझे देख के California you selected, right? Something you selected in blue ना. Blue देख के I got confused. Just I got selected only in California. Correct. So in regular air you are having the maximum number of delivery. Very nice. It's very good, Hasak. Yeah, clapping. Very good. Guys, please clap for सर him. मेरा एक डाउट है सर, Please ask. हम लोग का इवन एक्सेल में भी ऐसा विजुअलाइजेशन डेटा हम लोग बना सकते हैं। क्यों सर? वो Correct. पावर भी वो हो सकता है, ये कन्वीनियंट है, हाँ. बट कॉस्ट वाइज या कॉर्पोरेट साइड है तो कॉस्ट वाइज पावर भी कॉस्ट है ना सर, ज्यादा कॉस्ट है एक्स कंपेयर टू एक्सेल। Correct. But Power BI is having lots of capabilities that we don't know. Lots of capabilities is having that Excel is not having. So we are using We just need to play itself. correct. So if you see, Power BI is much better than no. Power BI is much better visualization as compared to Excel. Venkat. Excel is also very good, but as compared to Power BI visualization, में this is the best. Power BI is having the best output. ओके सर, ये पावर बीआई ना सर, एक्चुअली हम इसका पहले कंपनी में काम करता था, उसमें ना उन लोग सैप एसएपी है ना सर, सैप उसका अल्टरनेट पावर बीआई को लेके आया है सर। करेक्ट. वो मैंने कैसे सुना है, मैंने भी सुना है ये सैप का. अच्छा, आई डोंट हैव मच अंडरस्टैंडिंग ऑन सैप, बट मैंने भी सुना है सैप का अल्टरनेटिव पावर बीआई को लेके आए इन्होंने, हाँ, या क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया, वैसा कुछ बोल रहे थे वो. ये सैप के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, पता नहीं क्या है. कुछ तो भी है. यू आर राइट. हाँ यार सर, इसका पहले हम ना वो एक शिंडलर कंपनी बोल के लिफ्ट कंपनी, उसका अंदर काम करते हैं उन लोग ना, सैप में ना वो सैप का एक एक आईडी का बहुत कॉस्ट पड़ रहा है बोल के मैक्सिमम यूजर्स का जो आ, वो थोड़ा ऊपर का लेवल का यूज करते हैं ना सर, उन लोग को ना सैप का आईडी हटा के पावर बीआई के एक्सेस दिला दिया। ओके. बिकॉज पावर बीआई इज मोस्ट कस्टमाइज्ड आल्सो, वेंकट. पावर बीआई में हम्म बहुत कस्टमाइजेशन हो सकता है. यू विल नॉट हैव द एक्सेल डेवलपर. वो नहीं सुना होगा आपने, राइट? बट वी आर हैविंग द पावर बीआई डेवलपर. बहुत डेवलपर के जॉब रोल है पावर बीआई डेवलपर के लिए भी. ओके. सो पावर बीआई इज हैविंग मोर स्कोप एज ऑफ नाउ. पावर बीआई डेवलपर, पावर बीआई टेस्टर, पावर बीआई का डिफरेंट रोल ही होता है. बट एज अ बीए, हम्म अगर हम इतना बना दें, इतना शशांक ने बना दिया है ना, दैट इज मोर देन सफिशियंट. और दैट इज सफिशियंट, आई विल से दैट इज वेरी गुड. इतना भी अगर हमने कर दिया ना, सो दैट विल सेटिस्फाई आवर जॉब रोल एज अ बीए. ओके. हम्म वेरी गुड शशांक. वेरी गुड. नाउ गाइस, प्लीज क्लैप फॉर शशांक. Thank you, sir. Clap for Shashank. Let me clap first. Yes, like clapping, clap for Shashank. Very good, yeah. सच में शशांक, very nice. In the similar way, you can also create, guys. नैन्सी जी, for you, आपको इतना समझना है कि पावर बीआई क्या होता है, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं. ओके. उसके बाद विजुअलाइजेशन में क्या, थोड़ा बहुत मतलब आप आंसर कर पाओ इतना. Yes, sir. एक दो बार रिकॉर्डिंग अगर देखोगे ना, और उसके कुछ नोट्स बना लेना आप, तो Yes, आपकी sir. हेल्प करेंगे. Yes, sir. ओके. गाइस, मैंने शायद आपको बोला था कि नहीं बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आप सब लोगों के नोट्स जो हैं, अपडेटेड नोट, दैट प्लीज प्रोवाइड बाय दिस वीकेंड. संडे तक आप लोग नोट्स अपने मेरे को ग्रुप में डाल के दे दो, पूरे जहां तक हो चुका है आपका अभी तक का. ओके. शशांक, कंफर्टेबल? Yes, sir. ओके. सुभाष, सुभाष म्यूट. वेंकट, कंफर्टेबल टू प्रोवाइड ऑल योर नोट्स बाय दिस संडे? चार बिफोर नहीं दिस. सर, और थोड़ा 4 दिन चाहिए सर। ओके. तो करेंटली अ, वी मा, आर ऑन मा, फ्राइडे, मंगलवार का अंदर दे दूंगा सर। ट्यूसडे, राइट? यस सर। ट्यूसडे 16, ठीक है. 16 को बिना बोले आप दे देना वेंकट. हाँ. हम्म ओके. नैन्सी, अगर आपके हाथ में दिक्कत है तो कोई बात नहीं,
आप नहीं जो सर, मैं दे दूंगी नोट्स, बट अभी मैं आप नेक्स्ट वीकेंड तक दूंगी सर, क्योंकि मेरे को पिछला भी काफी सारा उसमें करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, और ये नोट्स जो आप बना रहे हो दैट इज ए पार्ट ऑफ जॉब। अगर नोट्स नहीं भी बनाओगे, एक आध दो दिन आगे पीछे चलेगा। जो आपने मॉक की डेट दी हुई है दैट विल बी द फाइनल डेट ऑफ योर मॉक। मैंने आपसे बोला था कल तक का टाइम है, आपको चेंज करना है तो कर लो। सर नहीं आप अदरवाइज सर, आज that's तक fine। बोले सर। हाँ, आप आज तक बोल दिया सर आज चलो। आज मतलब आज 12 तारीख हम्म। तक का। एनीबडी वांट टू चेंज द डेट? नो। ठीक हम है, एक बार स्क्रूटनी करके एक बार देखूंगा सर। बट आज ही मुझे बताना है वेंकट आपको, हाँ हाँ हाँ, है ना? बाकी हम्म। नैन्सी एंड सुभाष एंड शशांक आर कंफर्टेबल, तो वेरी गुड सर गाइस। जब दूसरा लोग मार्क देने के टाइम में हम लोग प्रेजेंट रह सकते हैं सर? नो, अच्छा। इफ यू वांट आई कैन शेयर द प्रीवियस बैच स्टूडेंट रिकॉर्डिंग। ओके। अगर आपको चाहिए हो बता देना, आई कैन शेयर। हाँ सर वो शेयर दे दीजिए कर सर। देना आप, थोड़ा सा तो बचा ही आइडिया क्या? लग जाएगा। मुझे लग ही रहा था आप लोग बोलने वाले इस चीज। मुझे लग रहा था ये आएगा, तो क्या मजा रहेगा। सारे क्वेश्चन पहले से पता रहेंगे। नो, आई विल नॉट नहीं शेयर। सर, नहीं बट करूंगा शेयर, आई विल नॉट शेयर। नो, सॉरी, आई विल नॉट शेयर। वो सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो मतलब ही नहीं है ना फिर तो। एक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा मेरा और आपका दोनों का। तो आई नॉट नहीं शेयर सर, भाई। याद भी तो रहना जरूरी है सर। খেতে হবে, কালকে সব দুপুর 12টায় বুকিং আছে। अरे तो वही क्वेश्चन है, फिर से पूछूंगा कि वही क्वेश्चन है, तो आप तो फटाफट आंसर दे दोगे उसके। चलो इट्स ओके, आई शेयर द ड्राइव लिंक। उस ड्राइव लिंक में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, वो आप लोग देख करके कर लेना, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट नहीं आएगा चलेगा, बट आप अच्छा दो मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपका मॉक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मॉक अच्छा गया तो फाइनली हम लोग रिज्यूम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। तो आई शेयर यू द डिटेल्स, इट्स फाइन। सर मेरा ना एक आइडिया आ गया है सर। बताइए सर। हम लोग रिज्यूम प्रिपेयर करके नौकरी में अपडेट करके हम्म। जो कंपनीज का कॉल्स आता रहेगा उसको हम लोग की तरफ से भी वो इंटरव्यू देते रहते हैं तो समझ में आता है ना सर। करेक्ट। व्हाट्स इंडियन इंडस्ट्रीज राइट नाउ बोल के हाँ। कैसे इंटरव्यू हम लोग ये मार्क का पहले हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते सर? यस, नहीं कर सकते। ओके। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर कुछ अच्छी कंपनी हाथ से निकल गई तो फिर दिक्कत होगी ना। नहीं एक्चुअली हम आपको ना पर्सनली फोन करके पूछने वाला क्योंकि एनीवे हम कोलकाता में इतना बीए का रोल्स कुछ नहीं मिलते सर। करेक्ट करेक्ट, हम यू आर राइट। हम कोलकाता लोकेशन डाल के जो कॉल्स आएगा उसका पूरा 100% रेडी होके उसके बाद हैदराबाद नहीं तो चेन्नई का लोकेशन डाल के प्रोसीड करेंगे सोच रहा था। कर सकते हैं वेंकट से, कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट आई वांट ना कि एक बार हम्म। अगर आप मॉक की डेट देते हो ना, यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर दैट। ओके। ओके, एंड प्रिपरेशन अगर एक बार हो गई, बिलीव हम्म में, एक बार अगर प्रिपरेशन अच्छी हो गई ना, तो ये जॉब हमें रोज अप्लाई करना है। वो फिर डेली एक्टिविटी हो जाएगी हमारी। फर्स्ट वी हम्म। शुड प्रिपेयर वेंकट। ओके। विदाउट प्रिपरेशन देयर इज नो लॉजिक ऑफ अप्लाइंग द जॉब। एक और चीज हम्म होती है, ग्रुप में हमारे एस्पिरेंट ग्रुप है, वहां पे आई ऐड यू गई। तो वहां पे अगर किसी ने इंटरव्यू दिया, कुछ नए क्वेश्चंस अगर मिलते हैं वहां पे आपको पब्लिश करना है। बाकी लोग पब्लिश करते हैं, आपको पब्लिश करना है वहां पे। आई ऐड इन द बैच ग्रुप। ठीक है, तो वहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ नए क्वेश्चन आपको आपको पब्लिश करना है वहां पे भी। वहां से आपको हेल्प मिलती है और बाकी लोग को भी हेल्प मिलती है। ओके। करेक्ट है। नहीं कभी कभी ऐसा भी कंपनी आ जाते हैं ना सर और कंपनी को बिजनेस एनालिस्ट तो इमरजेंसी है अगर उन लोग उतना ऊपर ऊपर इंटरव्यू करके ही वो पर्सन के एग्जैक्ट थोड़ा बहुत नॉलेज जेके ले लेते बोल के ऐसे लोग भी रहते हैं ना। ऐसे भी रहेंगे, हाँ। यस। एक बहुत अच्छी बात कही वेंकट ने, शशांक, वेंकट, नैन्सी और सुभाष। एक बात आप लोग याद रखना, इंटरव्यू आपका निकलेगा 90% ऑन योर लक एंड 10% ऑफ योर इंटायर हार्ड वर्क। 10% इज 100% रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके बिना 90% का रोल ही नहीं आएगा। देयर इज नो रोल इफ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर 10%।
But if you're preparing, you are giving all the answer in the interview, still you will not get selected as a business analyst or in any IT job role. इट डिपेंड कि उनको क्या चाहिए, इट डिपेंड उनको कितनी सैलरी आपको देनी है। उनको कोई इमीडिएट ज्वाइनर मिल रहा है तो आपको नहीं लेंगे, भले ही आप उससे भी अच्छा इंटरव्यू दिए। सो लक इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट यू द जॉब। What is in our hand, what is in our control, that we will focus, guys. सर Okay. बट सी, बैंकिंग में जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है जी आफ्टर कंफर्मेशन, जी। एंड मेरा ये मंथ कंफर्मेशन पेंडिंग है। हम्म। तो कंफर्मेशन लेना है हमको रेंट से। तो कंफर्मेशन तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इतना इंस्टेंट तो कुछ मिलने वाला नहीं है। करेक्ट। अब और आप उसके बाद आईटी कंपनी में तो रिक्वायरमेंट जो होती है वो बिल्कुल इमीडिएट ऐसे होती है ज्वाइनर। कि इमीडिएटली करना है। तो इन दैट केस वो लोग मुझे लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि 3 महीने का नोटिस पीरियड कोई भी नहीं लेगा। करेक्ट। तो फिर मैं क्या करूंगी करेक्ट, मैं आपको उस आंसर केस देता हूँ में? इसका। सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे इंटरव्यूज देंगे, फिर से फॉर यू आई एम टेलिंग। और मतलब आपका कितना है, वेंकट, नोटिस पीरियड? सर 60 days सर। 60 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। हाँ वो डिपेंड होता है सर, वो दे- टीम लीडर के ऊपर। हम लोग बोलेंगे हाँ 45 days का, थोड़ा हाँ, वही छोड़ घुमा दीजिए फिराएंगे। बोलेंगे। हाँ, घुमाएंगे फिराएंगे हो जाएगा। But for me, it नैन्सी, won't आप be a बोल problem, right? यस शशांक, आपके लिए जीरो प्रॉब्लम है। यू विल बी इमीडिएट ज्वाइनर, नो प्रॉब्लम फॉर यू ऑल्सो। नाउ प्रॉब्लम विल बी कम। पहले नैन्सी से, वेंकट से स्टार्ट करता हूँ। वेंकट क्या बोलेगा? वेंकट विल से आई एम हैविंग 30 days नोटिस पीरियड, यू विल गेट द जॉब। ओके, देन यू विल से माई प्रोजेक्ट इज नॉट रिलीविंग मी, आई विल ज्वाइन 15 days। इन दिस वे फॉर वेंकट इट इज इजी, वेरी इजी। फॉर नैन्सी, you need to take the calculated risk, but that calculated risk is process based। क्या प्रोसेस है उसका नैन्सी? सबसे पहले हम दिखाएंगे 30 days का नोटिस पीरियड नैन्सी। ठीक है। लोकेशन कौन कौन सा ओपन हुआ आप नैन्सी? हम ओके, लोकेशन का मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी अब आपका लोकेशन पे। लोकेशन का फिल्टर खत्म हो गया, मतलब बहुत सारी जॉब्स। अब आप हाँ। डालोगे 30 days का नोटिस पीरियड। कहाँ पे? अपने इंटर नौकरी पोर्टल पे। वहां पे ओके। आपको कॉल्स आना स्टार्ट होंगे। ठीक। ओके। वहाँ इंटरव्यू नहीं होंगे, शेड्यूल, फिर इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फिर फर्स्ट राउंड फेल हो जाओगे, सेकंड राउंड फेल हो जाओगी। फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपको एक ऑफर लेटर मिल जाएगा। इन दिस ओके। स्टेज टू गेटिंग द ऑफर लेटर, वी विल नॉट टारगेट एमएनसीज, विल नॉट टारगेट बिग बैंक्स। फिल्टर लगा के रखेंगे हम लोग, विल हैव स्मॉल कंपनीज एंड ऑल। एक ऑफर लेटर निकल गया, हम रुक गए, हम फिर से इंटरव्यू दिए, 2 ऑफर लेटर निकल गया। नाउ वी आर हैविंग द ऑफर लेटर विद अवर हैंड। अब हम उस लेवल पे हैं जहां हमारे इंटरव्यू निकल रहे हैं। अगर मेरा इंटरव्यू 12 दिसंबर को निकल रहा है, 12 दिसंबर इज द डेट जहां पे मुझे इंटरव्यूज के कॉल भी क्लियर होते जा रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, इंटरव्यू के सारे राउंड क्लियर हो रहे हैं और ऑफर लेटर रिलीज हो रहे हैं। अब यहां तक तो मैं कंफर्टेबल हूं कि अगर मैं आज आ रहे हैं तो कल भी आएंगे। क्यों? क्योंकि नैन्सी सेम है, नैन्सी का पैकेज सेम है, स्किल सेट सेम है। वहां पे नैन्सी जो 2 ऑफर लेटर है उसे 15 दिन का गैप लेकर के ट्राई करेगी कि उसी ऑफर लेटर को एक्सटेंड करा ले। नहीं हुआ एक्सटेंड, वो कई बार हो जाता है, एक्सटेंड हुआ ही नहीं। अब नैन्सी के पास असली के 30 दिन बचे। अब नैन्सी यहाँ पे आपको, यू आर हैविंग लोन नैन्सी विथ यू? सॉरी। लोन है आपके ऊपर कोई? हाँ है ना। हम्म। होम लोन है हाँ क्या? है सर। होम लोन नहीं है, बट मेरा एक कार लोन और एक एजुकेशन लोन चालू है। कार भी ले लिया आपने? हाँ सर, वो पेरेंट्स को गिफ्ट किया था। ये गिफ्ट में 11 साल हो गया, मैंने तक कार ले ली, जीरो रन पे बैठा हूँ। ओके, तो थोड़ा सैलरी जोड़नी होगी नैन्सी, क्योंकि एक टाइम पे कैलकुलेटर इसको लेना होगा। सर यस कुछ सर। केस में है सर, अभी 3 महीने है ना, इन लोग का वो अपॉइंटमेंट लेटर में कहीं ना कहीं तो मेंशन करता है
अगर ईयरली रिलीज चाहिए तो वी हैव टू पे दैट 1 पे मंथ और 2 समथिंग, मंथ। करेक्ट। हाँ, अगर आपको एक तो महीने का अगर मेरा 3 महीने का है तो मुझे मेरा कम से कम 1 लाख, तो अगर मुझे 3 महीने 1 महीने में चाहिए तो मुझे 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। हाउ विल आई मैनेज? नहीं, अगर आपको 50,000 महीने देना है ना आपको, हाँ। 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे इन केस। वर्स्ट के समय की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ। जॉब लग गई और 1 लाख रुपए देने हैं। जो आपकी सैलरी बढ़ेगी ना इनसे, वो कितनी बढ़ेगी पर मंथ? सर वो लगभग मुझे सब 20,000। वो सब क्लियर है। चलो मेरी 50 से 70 हो गई महीने की। जी। बट उस टाइम पर मैं ये कहाँ से निकाल पाऊंगी, वो भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना सर। क्या निकाल पाओगे? 1 लाख रुपए मैं कहाँ से निकाल पाऊंगी? ओके, सेविंग्स की दिक्कत है। हाँ है, अभी तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। ओके, तो नैन्सी सच बोल करके विल ट्राई टू गेट द जॉब, बिकॉज सम ऑफ द रेफरल जो रहते हैं ना, वहां पे जॉब्स रहती हैं। और अगर आपकी सैलरी सच में 50,000 रुपए है ना, तब तो वहां पे वी कैन ट्राई फॉर द रेफरल एज वेल। बट नैन्सी दिक्कत तो आएगी। ट्राई करो कि पैसे सेव करने का नैन्सी। एक बार अगर करियर स्विच हो गया नैन्सी एज अ बीए ना, एक तो पैसे बहुत हैं, ऊपर से लाइफ दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी, आपका लोन, केवल आप महसूस कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं। बट वॉट आई कैन फील कि स्विचिंग भी जरूरी है। तो इसी लाइफ लूप में हमेशा रह जाएंगे नैन्सी फिर तो। एक का कहीं और से पीएल लेके नहीं दे सकते क्या नैन्सी? नहीं कीजिए नैन्सी, सर आई मैनेज, लेट्स मतलब कहीं और से लेके कहीं और घुमा देंगे अगर जॉब लग गई तो। सी। लेट्स सी, पहले जॉब लेते हैं नैन्सी, उसके बाद देखते हैं। बट डिमोटिवेटेड नहीं होना है नैन्सी, हाँ। 1 लाख का लोन कहीं से उठा करके उसको भर करके कहानी खत्म कर देना। नैन्सी, हाँ सर, हाँ। आपका डिमोटिवेशन मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, 1 लाख कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। और हो सकता है आपको 3 महीने पे मिल जाए ऑफर। पॉसिबल तो ये भी है। तो अभी गाइस यू प्लीज फोकस ऑन द मॉक्स। ओके सुभाष, नैन्सी, यस सर, यस सर। नैन्सी, कई फोकस बार ऑन होता है सर, मॉक्स। कंपनी आपको सैलरी भी ऑफर कर देती है इंस्टेंट ज्वाइनिंग के अरे हाँ, लिए। एक और चीज, ये आपको देखो, मैंने सैलरी। ये देखो, ये यस बहुत अच्छी सर। बात कही है। कई बार कंपनी बाय आउट का ऑप्शन रहता है नैन्सी। नैन्सी, सर अभी देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, चलेगा। ओके, सो गाइस वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑन मंडे। ओके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर क्लास ऑन मंडे, जहाँ पे एपीआई हम पढ़ने जाएंगे। ओके, थैंक यू सो सॉरी मच। सर, और सर लेट हो गया, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं सुभाष, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, कुछ लगे तो मैं वो कॉल कर रिकॉर्डिंग सकते दे हैं। दूँ। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, यस ओके, सर, थैंक यू सुभाष, नैन्सी, वेंकट, Okay, sir. शशांक। Good night. थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट।